Welcome back, friends. In the last class we did trigonometry. We revised all the basics of ninth standard and we learned some formulas. Today we will proceed in the next to the next part, that is we will do from question number 5. Okay, so in question number 5 they say if tan theta is 1, देखो वो लोग क्या बोल रहे हैं, if tan theta is 1 then find the value of sin theta plus cos theta, sin theta plus cos theta upon sec theta plus cosec theta, sec theta plus cosec theta, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है. ओके, नाउ tan theta तुमको दिया हुआ है. We know that 1 plus tan square theta is sec square theta, पता है हमको. Therefore 1 plus 1 square equal to sec square theta. Therefore ये कितना 2 equal to sec square theta. Therefore sec theta कितना हुआ √2. करेक्ट, sec theta मिल गया √2. Now we'll get cos theta. cos theta कितना मिला रे 1/√2. देखो अपने को sec मिला, cos मिला. करेक्ट, we want sin and cosec. अभी sin कैसे मिलेगा रे, sin theta, sin square theta plus cos square theta is 1. सॉल्व करो, तुमको sin theta मिलेगा 1/√2. करेक्ट, sin theta मिल गया 1/√2. तो cosec theta कितना होगा रे बच्चों, cosec theta होगा √2. Why? Reciprocal of sin theta. Correct. So now you got sin theta, cosec theta, you got cos theta, sec theta. सब कुछ तो मिल गया. अभी इसमें पुट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, therefore this is equal to what, sin theta मतलब 1/√2 plus 1/√2 upon √2 plus √2. देखो रे ये सब तो तुमको आएगा, मगर यही बच्चों को आजकल नहीं आता. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फर्स्ट विल राइट द न्यूमरेटर हियर 1/√2 plus 1/√2 कितना 2/√2 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड के साइन की जगह हमने ये डाला. क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में फ्रैक्शन प्रॉब्लम होता है, कंफ्यूजन होता है. सो वी आर डूइंग दिस. सो यू गेट 2/√2 डिवाइड बाय √2 plus √2 2√2. इसको अच्छे से लिखेंगे 2/√2 into 1/2√2. 2 cut √2 into √2 2. So you get 1/2. Therefore answer है ना, ये जो भी दिया हुआ है ये is equal to 1/2. Okay, hope you have understood. इसके बहुत सारे मेथड्स है करने के. You can do by any method if it's given in the school, a different method, or if any other method is clicking, you can do in that way also. Okay, now let's move to question number 6, that is prove that. अभी ये जो प्रूव दैट है ये बहुत बच्चों को टफ जाता है. टफ क्यों जाता है रे बच्चों, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस हमने लाइफ में कभी किए नहीं. ट्रिग्नोमेट्री 9th में भी ज़्यादा नहीं था, अभी 10th में आया. एंड दिस प्रूव दैट क्वेश्चंस आर टफ. सो व्हाट मेनी स्टूडेंट्स आर डूइंग, दे आर लिविंग इट फॉर ऑप्शन कि एग्जामला किती येणार आहे, आगे कितना आएगा, एखादा क्वेश्चन आएगा उसके लिए भी ऑप्शन आएगा. सो दे आर नॉट डूइंग. बट बीवेयर स्टूडेंट्स, द सेम क्वेश्चंस, listen carefully, the same questions are repeated in 11th standard chapter number 2. तो तुमको फिर से यही करना है 11th standard में जाके. और 11th standard में कोई तुमको ये सिखाएगा नहीं, they will direct continue after this. So better you do prove that. Okay, whether you take science, commerce और arts, ये तो तुमको मैथ्स में 11th standard और 12th standard रहने वाला है. Okay, so let's start with the prove that questions. The first question in prove that. Today in this class we will do the easy questions today and the tougher ones tomorrow. While writing also you will have to write in the same order, so that while studying also you do the easy questions first and the tougher questions later. Okay, क्योंकि देखो easy questions पहले पढ़ेंगे ना तो confidence आता है कि हाँ prove that हमको आ रहा है. फिर लास्ट के टफ के 2-4 क्वेश्चन तुम लोग कर लेते हो, लेकिन स्टार्टिंग में टफ क्वेश्चन करोगे बोलोगे अरे यार
कुछ कितना टफ है ना, एंड देन यू टेंड टू लीव इट व्हाइल स्टडिंग. ओके, सो वी विल डू द इजियर वंस टुडे एंड द टफर वंस in the next class. So first question is prove that sin square theta upon cos theta, sin square theta upon cos theta plus cos theta. Okay, we have to prove this to be sec theta equal to, इसको prove करने equal to sec theta. Okay, so we write LHS is equal to ये, that is sin square theta plus, देखो LCM लेंगे, इधर क्या आएगा cos theta LCM, you will have to multiply this by cos theta, तो ये क्या आएगा इधर cos square theta, correct. But you know sin square theta plus cos square theta is 1, तो इधर क्या आएगा 1 upon cos theta. इधर लिखेंगे रीजन, since sin square theta plus cos square theta is 1, so you get 1 upon cos theta and that is sec theta. यही तुमको प्रूफ करना था, तो लिखेंगे इज इक्वल टू RHS. Therefore as LHS is equal to RHS and you write the question again, क्या sin square theta upon cos theta plus cos theta is sec theta. Okay, did you understand how to write? ठीक है, तुमको ये नोट्स में दिया जाएगा. Let's move to the second question, that is cos square theta into 1 plus tan square theta is 1 प्रूव करना है. देखो cos square theta into 1 plus tan square theta, this is the LHS, correct. इसको 1 प्रूव करना है, is equal to cos square theta into 1 plus tan square theta क्या होता है बच्चों, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या होता है sec square theta, करेक्ट. तो रीजन लिखेंगे 1 plus tan square theta equal to sec square theta. Now is equal to cos square theta into 1 upon cos square theta. Sec theta is 1 upon cos theta, रीजन लिखेंगे sec theta is 1 upon cos theta. Okay, cos square उड़ गया, क्या रहेगा 1 is equal to RHS. देखो कितना इजी है, प्रूव दैट बहुत ज्यादा इजी है, फिर भी बच्चे ऑप्शन को छोड़ते जस्ट बिकॉज देयर इज अ फियर. कोई ऑप्शन को नहीं छोड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डू लेटर एंड क्वेश्चन नंबर 4 also we will do later. We will do question number 5. So what does question number 5 say? Prove that cot theta plus tan theta equal to cosec sec. So you have cot theta plus tan theta. हमको प्रूफ क्या करना है, इसको इक्वल टू cosec theta sec theta. ठीक है, ओके. सो यू राइट LHS इज इक्वल टू cot theta क्या 1 upon, ओके, cos theta upon sin theta, बराबर. tan theta इज व्हाट, sin theta upon cos theta. भाई जिनको ये फॉर्मूलेज नहीं पता लर्न कर लो, क्या cot theta is cos theta upon sin theta and tan theta is sin theta upon cos theta. ये फॉर्मूलेज है, 9th में भी थे, ठीक है. अगर तुमने 9th में नहीं किया तो अभी लर्न कर लो, कुछ नहीं. cot theta is cos upon sin, tan is sin upon cos. इजी फॉर्मूलेज है, पुट किए हमने फॉर्मूलाज. therefore what do you get, now you are taking again, you are taking LCM. ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, cos into cos, cos square theta plus sin into sin, sin square theta, करेक्ट. नीचे क्या रह गया, sin theta cos theta is equal to sin square theta plus cos square theta is 1. पहले से पता है हमको 1 upon sin theta into cos theta. ओके, तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, sin square theta plus cos square theta 1 is equal to, इसको अच्छे से जरा लिखेंगे अगर 1 upon sin theta into 1 upon cos theta. लिख सकते हैं ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना. 1 upon sin theta is what, cosec theta, and 1 upon cos theta is what, sec theta. हो गया, is equal to RHS. Therefore as LHS is equal to RHS, you just have to write the
क्वेश्चन. ओके, अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? तो देखो बहुत इजी है. विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. 1 upon sec theta minus tan theta is equal to sec theta plus tan theta. ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो LHS is equal to 1 upon sec theta minus tan theta, ये दिया हुआ है तुमको, करेक्ट. नाउ इसको करेंगे मल्टीप्लाई sec theta plus tan theta से. sec theta plus tan theta. ले सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये ऐसे ही करने एग्जाम में? देखो एक तो ये जो प्रूव दैट के क्वेश्चन होते हैं ये प्रैक्टिस से आते हैं तुमको. सी मोर एंड मोर यू प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाट हैज टू बी डन. 2-3 थिंग्स आर देयर. एक तो sec और tan में आइडेंटिटी है. sec square minus tan square is 1. अब ये कैसे आता है? देखो we know that 1 plus tan square theta is sec square theta, correct. Now if the tan square theta goes there, what do we get? 1 is equal to sec square theta minus tan square theta. तो हमको ये पता है क्या? therefore sec square theta minus tan square theta is 1. ये बात हमको पता है. तो अगर तुम्हारे पास a minus b है तो तुम लोग a plus b करोगे तो तुमको a square minus b square मिलेगा ना. लॉजिक है. So with that logic we are multiplying with sec theta plus tan theta. Okay, ठीक है. या तुम लोग रैशनलाइजिंग भी याद रख सकते हो कि रैशनलाइज कर दिया. ठीक है. ओके, so therefore now you get a plus b, a minus b. So what are you getting? sec theta plus tan theta upon इधर क्या आएगा? sec square theta minus tan square theta is equal to sec theta plus tan theta upon 1. ये 1 क्यों आ रहा है बच्चों? ये पूरा रीजन लिखना है इधर. ये पूरा रीजन है ना. क्या लिखेंगे हम लोग? 1 plus tan square is sec square, therefore sec square minus tan square theta is 1. ये पूरा इसका रीजन है कि why sec square theta minus tan square theta is 1. therefore you get sec theta plus tan theta is equal to, लिख देना अच्छे से. देखो बच्चों कितना इजी है, बहुत ज्यादा इजी है. सब लोग अच्छे से करेंगे. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. sin raised to 4 theta minus cos raised to 4 theta equal to 1 minus 2 cos square theta. ठीक है. अभी देखो LHS is equal to, ठीक है, ये LHS है. अभी हमको आंसर में क्या चाहिए? 1 minus 2 cos square theta चाहिए, करेक्ट. 1 minus 2 cos square theta चाहिए. सो आंसर में हमको सिर्फ cos square चाहिए, करेक्ट. साइन की जरूरत है क्या? नहीं. सो वी विल ट्राई टू कन्वर्ट दिस साइन इनटू cos. कैसे करेंगे? देखो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? sin square theta the whole square minus cos square theta the whole square. Isn't it children? लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है. क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमको सिर्फ इसको चेंज करना है, सिर्फ ये साइन करना है. तो इसको ऐसे ही रखेंगे. ओके ओके, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर डाउट्स. की तुम बोलेगे सर इसको लिखा, इसको क्यों नहीं लिखा? इसको लिख के क्या फायदा भाई? हमको आंसर cos स्क्वायर चाहिए ना. तो cos को हमको हाथ नहीं लगाना. अभी हमको ये साइन को कन्वर्ट करना है cos में. साइन को cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वी नो ओनली वन फॉर्मूला. व्हाट? 1 minus sin square theta is cos square theta, correct, and 1 minus cos square theta is sin square theta. ये दोनों फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं? sin square theta plus cos square theta is
1, इससे ये दो फॉर्मूले मिले हमको। ओके, नाउ हाउ विल वी राइट sin स्क्वायर थीटा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा द होल स्क्वायर माइनस cos रेज टू 4 थीटा। अभी ये क्या हो गया? a माइनस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट? a माइनस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस देखो ना, ये ऐसा ही सेम टू सेम, इसका एक्सपेंशन इधर देखो कितना अच्छे से लिखा है मैंने, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू, अच्छे से लिखोगे तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, अभी cos रेज टू 4 थीटा माइनस cos स्क्वायर, सॉरी हाँ, cos रेज टू 4 थीटा और माइनस cos रेज टू 4 थीटा जीरो हो गया, तो क्या रह गया? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यही तो तुमको चाहिए था, इज इक्वल टू RHS। ओके, देखो 4 स्टेप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, इधर देख के ही समझ में आता है क्या साइन और कॉस है, आंसर में क्या चाहिए? सिर्फ कॉस चाहिए। क्या करेंगे? इसको कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग कि साइन को कॉस करने के लिए एक ही फॉर्मूला आपके पास, sin स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको पहले sin स्क्वायर में लिखना पड़ेगा, तो लिखा sin स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर, लिख दिया sin स्क्वायर को स्क्वायर, एंड देन यू सॉल्व इट। ओके, जिनको नहीं आ रहा है वो लोग वीडियो रिवाइंड करके बार-बार देख लो। ओके, नाउ we'll move towards question number 9, which is very easy, and then the remaining questions we will do in the next video. Okay, so what does question number 9 say? If tan theta plus 1 upon tan theta plus 1 upon tan theta equal to 2, then show that if tan theta plus 1 upon tan theta is equal to 2, show that tan square theta plus 1 upon tan square theta is equal to also 2। ये प्रूफ करना है हमको, करेक्ट? नाउ ये दिया है तुमको, ये दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग? देखो, स्क्वायर चाहिए ना हमको, इधर भी स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे। कैसे स्क्वायर करेंगे? देखो, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा द होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 4। क्लियर? देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 स्क्वायर क्या आया? 4, करेक्ट? अभी इसको कैसे लिखेंगे? देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस ये कट गया 2 प्लस इसका क्या होगा? 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, लेकिन हमको यही चाहिए प्रूव दैट में कि 2 उसको उधर भेज देंगे, तो क्या मिलेगा तुमको? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इधर 2 इधर आएगा तो क्या आएगा? 2 हो जाएगा। हो गया, है ना? फिर अच्छे से हैंडराइटिंग में लिख देंगे, हेंस प्रूफ। ओके, अंडरस्टूड चिल्ड्रन? सो today we have done all the easy questions of prove that. In the next class we will do they are also not tough but little bit lengthy questions whichever are there, so we will do it in the next class. Thank you friends.